Good afternoon, my dear students. Myself, Dr. Grish Goyal, Assistant Professor, Department of Agronomy, School of Agriculture, IIT University, Gwalior. Students, I hope you all are good and stay at home safely. मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे. Student, today I am going to start our subject Agron 514 Agronomy of Major Field Crops Kharif for MSc Agronomy third semester. Students, so let's start our topic about cultivation of sesame crop part 2. इससे पहले पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 हो सकता है, पार्ट 3 आ सकता है. Student, I will introduce all content one by one. And first climate, and next temperature, next rainfall, next soils, next tillage, next varieties, and next cropping system, next intercropping, next outcome, and then references. Okay. Student, before starting the topic, I want to telling you about some introduction of sesame crop. Student, sesame is crop associated within Indian culture in many ways, in also known as jingli to till. Students, it was grown in India since time immemorial, even during pre-Vedic period, as many Sanskriti literature work cite the use of sesame. Students, the sesame, also called sesame seeds, are directly consumed for different culinary purpose for making confirmation. Students, and various religious purpose, the seed are rich in oil 50%, protein 18 से 20%. Beside minerals like phosphorus and iron, students, the seed provide high energy 5.75 kcal per gram. Students, oil cake is edible and the use of for many ready to eat food. Oil cake is also used as cattle feed and is contains 6.2% and 2.2% phosphorus and 1.2% potassium. Students, the cultivated species Sesame indicum also originated in India, but in sub-Saharan areas, many wild types of sesame are grown as natural vegetation. Students, it must have the spread from the India to China, Thailand, Myanmar, and Japan. While secondary center for origin sesame to be around Sudan, even thought it is a popularly grown in other African countries like Ethiopia and Nigeria. Students, major sesame producing countries are India, China, Myanmar, Sudan, Pakistan, Mexico, Ethiopia, Sri Lanka, and Burma. In India, major sesame cultivated states are Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Tamil Nadu, and Maharashtra. Okay. So students, फर्स्ट कंटेंट है हमारा क्लाइमेट. ओके, तो आइए हम लोग क्लाइमेट जानने की कोशिश करते. इससे पहले जो मैंने बताया वो जनरली इंट्रोडक्शन था थोड़ा, तो ठीक है. तो सो दिस फर्स्ट कंटेंट क्लाइमेट. स्टूडेंट, क्लाइमेट, इट्स मेन डिस्ट्रीब्यूशन इज बिटवीन 20 degree southern and 20 degree northern, but found growing up to 40 degree northern in India, China, Russia, and USA, and 30 degree southern in Australia, and 35 degree southern is South America. Students, its altitude range is normally below 1250 m, although some varieties may be locally adapted up to 100
1500 m. It's growing in Himalayan up to 1250 m and up to 2000 meter in Nepal. So the student, this is climate. नेक्स्ट का कंटेंट है टेम्परेचर. ओके स्टूडेंट, सीस्मम रिक्वायर fairly hot condition during growth for optimum yield. A temperature of 25 to 37 degrees Celsius is ideal for rapid germination in initial growth and flower formation. Students, germination is delayed at temperatures below 20 degrees Celsius and temperature less than 80 degrees Celsius after emergence will severely retard growth. Students, low temperature at flowering result in pollen sterility and premature flower drop. Conventionally temperature above 40 degrees Celsius at flowering seriously affect fertilization and number of capsular set will be low. So students, this is temperature. नेक्स्ट कंटेंट है हमारा रेनफॉल. स्टूडेंट्स, once established system is capable of with standing a higher degree of water state drought than many other crops. The seedling stage, however, is expectable to moisture shortage. Students, the crop can be grown entirely on stored soil moisture, and only an added shower early in growth can produce good yield. Rainfall of 600 to 1000 mm can resulting in optimum yield under varying soil and climate condition in India. So student, this is rainfall. नेक्स्ट कंटेंट है हमारा ओके स्टूडेंट, इसी में थोड़ा सा था पॉइंट. सीसम इज स्टेबली substantial to waterlogging and heavy continuous rains at any time during the growth will genuinely increase the incidence of the fungal disease. Heavy rain at flowering will be directly reduce the yields, and if clouding weather present and the projects for any period at this time, yield will be directly reducing. तो स्टूडेंट्स, दिस इज रेनफॉल. नेक्स्ट का कंटेंट है हमारा कंटेंट है सॉइल. ओके सो स्टूडेंट्स, सॉइल seasonal grow will be on a varieties of soil, but otherwise best of the those which is a moderately fertile with the good internal drainage. Soil with the natural reaction are preferred. Students, it will grow will on soil with a pH ranking of 5.5 to 8. Students, in Uttar Pradesh, in Madhya Pradesh, seasonal is grow on lateritic soil, laterite soil, light and texture and good fertility, and on more heavy soils. In Gujarat, it is grow on sandy loam, and in Karnataka on red earth. Students, it is grow on clay loam in Andhra Pradesh and loams in Tamil Nadu. In Maharashtra, seasonal is grow on medium to heavy black soil. So students, this is soil. नेक्स्ट कंटेंट है स्टूडेंट्स टीलेज. सो स्टूडेंट्स, land preparation for seasonal is similar to as that for wheat, sorghum and other millets. For kharif crop, land is deep plowed with summer sower is April to May. Students, with the onset monsoon rain 2 to 3 harrowing are given to break up to the cloud. However, soil require only 3 to 4 harrowing to produce a fine seed bed. Rabi crop requires less land preparation as the soil are frequently moist from the monsoon rain. Stand establishment. The problem is seasonal has to be grow after kharif rice. Students, under such a
condition there is scope only for the minimum tillage. So this is tillage. Students, next content है varieties. Okay, so students, late season varieties are short day plants, so and when grow under long days become excessively vegetative. Early cultivars are day natural short photo period maybe increase the number of capsular per plant in early and mid late cultivars. Therefore varieties recommended are season and local specific. Some of the recommended varieties are given in table 1.1. so this table, so students, table recommended season varieties for different stage. so students, स्टेज हमारे डिफरेंट स्टेट हमारे हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश. हम लोग कौन कौन सी रिकमेंडेड वैरायटी कर लें ये अभी देखिए बताते हैं स्टूडेंट्स. तो मध्य प्रदेश में हम लोग जैसे हमारा गुजरात तिल हुआ, ठीक है, एंड TKG21 हुआ, TKG22 हुआ, JT1 हुआ एंड TKG 306 हुआ. जी हम लोग रिकमेंड कर सकते हैं. राजस्थान में RT46 हुआ, RT54 हुआ, RT103 हुआ, RT125 हुआ. सो दे आर डिफरेंट वैरायटीज रिकमेंड कर सकते हैं. ऐसे ही मध्य प्रदेश में हम लोग गुजरात तिल हुआ, जिसे हम सीसम भी बोलते हैं, 4 तपी प्रथम हुआ, AKT64, AKT101 हुआ, PPKVNT11 हुआ, JLT408 हुआ. सो दे आर डिफरेंट वैरायटीज़. फिर आता है उत्तर प्रदेश. यहाँ कौन सी वैरायटी हम लोग रिकमेंड कर सकते हैं आइए देखते हैं. स्टूडेंट T78 हुआ, शेखर हुआ, प्रगति हुआ एंड तरण हुआ. सो दे आर डिफरेंट स्टेट्स एंड डिफरेंट रिकमेंडेड वैरायटीज़ ऑफ डिफरेंट स्टेट्स. ओके, हम हमारे जो 4 स्टेट हैं हम यहाँ पे तरह तरह की वैरायटी रिकमेंड करें अलग अलग स्टेट में, ठीक है. जैसा मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, महाराष्ट्र हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, जहाँ पे हम लोग तरह तरह की वैरायटी रिकमेंड कर रहे हैं. स्टूडेंट, टेबल रिकमेंडेड सीसम वैरायटीज़ फॉर डिफरेंट स्टेट, ठीक है. तो वही हम कहने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं जो डिफरेंट वैरायटीज़ हैं. तो वहाँ पे हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, जो तरह तरह की वैरायटी है रिकमेंड कर रहे हैं और तरह तरह के स्टेट में, ठीक है, किस स्टेट में हम लोग कौन सी वैरायटी रिकमेंड कर रहे हैं. तो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है. फिर स्टूडेंट्स आता है हमारा स्टूडेंट्स सीसमम रिस्पॉन्ड ऑफ अबाउट 50 kg per hectare if the soil are deficient in sulfur integrated nutrient management. On setting of 5 ton per hectare of FYM 40 kg phosphorus and seed treatment with the and azosporium has given ensuring resulting at several situations. So this is varieties. Students, नेक्स्ट कंटेंट है हमारा क्रॉपिंग सिस्टम. सो स्टूडेंट्स, क्रॉपिंग सिस्टम. सो कैंसल क्रॉपिंग. स्टूडेंट्स, सीसम वाई virtual of its short duration fits will into a number of intensive system either as catch crop or sequence crop. Some of the sequence cropping system are given below in first region and second table crop sequence. So first of all region, and first Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश. फिर है हमारा क्रॉप सिक्वेंस. ठीक है स्टूडेंट्स, क्रॉप सिक्वेंस फर्स्ट आंध्र प्रदेश एंड देन क्रॉप सिक्वेंस राइस, ग्राउंड नट, ठीक है, सीसम, चिकपी. देन सेकेंड रीजन है हमारा तमिलनाडु. क्रॉप सिक्वेंस राइस, ग्राउंड नट, सीसम रवि, ठीक है, एंड सोरगम. फिर स्टूडेंट्स थर्ड कर्नाटका, सीसम, हॉट ग्राम, चिकपी. एंड फोर्थ है उड़ीसा, राइस, पोटैटो एंड सीसम. फिर है मध्य प्रदेश, स्टूडेंट्स कॉटन, सीसम एंड वीट. ठीक है. सो स्टूडेंट्स फिर हमारा नेक्स्ट है पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान एंड
वेस्ट बंगाल। स्टूडेंट्स ये एक टेबल में नहीं आया तो हमने इसको 2 टेबल में कन्वर्ट किया है, ठीक है ना। इसके बाद जो एक टेबल थी, इसका पहले टेबल थी, ये सेकंड टेबल है, ओके। तो स्टूडेंट पंजाब में सीसमम, ग्राउंड नट, कॉटन एंड मेज। यहीं उत्तर प्रदेश की बात करें सीसमम, ग्रैंड, रेपसीड, मस्टर्ड, लिंटिल, बार्ले। हरियाणा सीसमम, व्हीट एंड मस्टर्ड। फिर गुजरात हुआ, गुजरात में सीसम, व्हीट एंड मस्टर्ड। फिर राजस्थान में सीसमम, व्हीट एंड मूंग बीन एंड बार्ले। फिर वेस्ट बंगाल में बात करें पोटैटो, सीसम एंड राइस, सीसम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दे आर डिफरेंट क्रॉपिंग सिस्टम एंड डिफरेंट स्टेट, ठीक है। तमिलनाडु, तमिल एंड आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। सो दे आर डिफरेंट टाइप स्टेट, ओके, इन डिफरेंट रीजन, ओके। सो दिस इज क्रॉपिंग सिस्टम। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इंटर क्रॉपिंग। स्टूडेंट्स इंटर क्रॉपिंग देखिए, आइए देखते हैं इंटर क्रॉपिंग हम लोग कैसे कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स intercropping yield and monetary advantage from sesamum are high when it is cultivated as a sole crop than as mix intercrop. However, sesamum is grow as a mix intercrop, keeping in view the risk of total crop failure under abnormal rainfall condition. Abnormal condition, okay. Abnormal condition कहाँ कन, okay. Some of the intercropping system in involving seasonum are given below and table and so students, so they are different states and okay, and different intercropping. So first of all उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, ओके। सो फर्स्ट है उत्तर प्रदेश एंड मिक्स इंटरक्रॉपिंग, ठीक है। ये देखते हैं उत्तर प्रदेश में कैसे कैसे हम इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। सीसम के साथ हम लोग गिनीग्राम कर सकते हैं, इसका रेशियो क्या है 1:1, ठीक है। और सीसम के साथ हम लोग पिजन पी भी कर सकते हैं, इसका रेशियो क्या रहेगा 2:1। फिर हम लोग स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश की बात करें तो हम लोग इसमें सीसम प्लस ग्रीन ग्राम क्या कर सकते हैं, इसका रेशियो क्या है 1:1, ठीक है। और इसमें हम सीसम के साथ सोयाबीन भी कर सकते हैं, इसका रेशियो क्या है सीसम प्लस सोयाबीन का रेशियो क्या है 2:1। यही बात करें हम लोग स्टूडेंट राजस्थान की बात करते हैं तो सीसम प्लस परमिलेट्स का रेशियो 1:1 है। सीसम प्लस सोरगम कर सकते हैं, इसमें रेशियो 3:1 है। फिर स्टूडेंट कर्नाटका है, यहाँ पे सीसम के साथ हम ग्राउंडनट कर सकते हैं, इसका रेशियो 1:1 है। फिर स्टूडेंट आता है तमिलनाडु आता है तो सीसम प्लस ग्रीन ग्राम, इसका रेशियो 8:1 है। सीसम के साथ कॉपी कर सकते हैं 8:1। फिर स्टूडेंट वेस्ट बंगाल है, सीसम प्लस समर ग्राउंडनट हुआ। फिर उड़ीसा हुआ सीसम एंड समर ग्राउंडनट। तो स्टूडेंट्स दे आर डिफरेंट स्टेट एंड डिफरेंट टाइप मिक्स क्रॉपिंग है, इंटरक्रॉपिंग एंड डिफरेंट रेशियो। स्टूडेंट्स हमारे जो तरह तरह के स्टेट हैं, इस स्टेट में हम लोग मतलब किस तरह इंटरक्रॉपिंग करेंगे, मिक्स क्रॉपिंग करेंगे, अभी मैंने आपको बताया। और कितने कितने रेशियो में करेंगे हम लोग, ठीक है। मतलब कितने कैसे रेशियो में रिकमेंड करेंगे हम लोग। जैसे किसी का जैसे मध्य प्रदेश में ले लो, जैसे सीसम प्लस ग्रीन ग्राम का है, इसका रेशियो क्या है 1:1 है। अब इसी में हम लोग सीसम के साथ सोयाबीन भी कर सकते हैं, तो इसका रेशियो क्या है 2:1 है, ठीक है। अगर यही बात करें हम लोग अगर उत्तर प्रदेश की ले सीसम के साथ हम लोग ग्रीन ग्राम कर सकते हैं, इसका रेशियो क्या है 1:1 है। अगर यही बात करें हम लोग सीसम के साथ पिजन पी भी कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में, कितना इसका रेशियो क्या है 2:1। सो दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट एंड डिफरेंट मिक्स क्रॉपिंग है इंटरक्रॉपिंग रेशियो, ठीक है। स्टूडेंट्स हम कहीं भी हों, जैसे हम कहीं भी किसी स्टेट में हैं, तो जैसे मैंने बताया उत्तर प्रदेश का हुआ, मध्य प्रदेश का हुआ, महाराष्ट्र का हुआ सॉरी कर्नाटका का हुआ, तमिलनाडु हुआ, वेस्ट बंगाल का हुआ, उड़ीसा का हुआ। किस स्टेट में हम लोग
मिक्स क्रॉपिंग इंटर क्रॉपिंग जो करेंगे उसका रेशियो क्या है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स एक्चुअली में क्या होता है इसमें, इस जो मैंने अभी आपको बताया है इंटर क्रॉपिंग, इसमें से कई सारे आपके क्वेश्चन फटअप होते हैं। देन मैं आपके क्विज में भी पूछ सकता हूँ, एग्जाम में भी पूछ सकता हूँ, आपके वाई में भी पूछ सकता हूँ। और स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है आपके एग्ज़ाम में भी है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी कई टाइप के क्वेश्चन फटअप होते हैं। तो ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, दे आर डिफरेंट स्टेट। तो स्टूडेंट ये दे आर डिफरेंट इंटर क्रॉपिंग या मिक्स क्रॉपिंग रेशियो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कोई पूछ देता है मध्य प्रदेश में हम लोग अगर मतलब इंटर क्रॉपिंग कर रहे हैं तो उसका रेशियो क्या होगा। ठीक है, सीसमम और ग्रीन ग्राम का, तो बता सकते हो 1:1। कोई पूछ दे सीसम पहले सोयाबीन का रेशियो क्या है तो बता सकती हो 2:1। अगर कोई पूछ दे राजस्थान में हमको इंटर क्रॉपिंग करना है उसका रेशियो क्या है सीसम और पर मिनट का, तो आप बता सकते हो 1:1। अगर कोई पूछ दे सीसम पहले सोरगम का रेशियो क्या है तो आप बता सकते हो 3:1। तो स्टूडेंट दे आर डिफरेंट स्टेट एंड डिफरेंट मिक्स एंड इंटर क्रॉपिंग। ठीक है, इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपके फटअप कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपके इसमें से फटअप होते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके कम्पिटिटिव में आते हैं, आपके नेट में आते हैं, हम इसी तरह आपके आगे क्विज में भी क्विज में भी देते हैं। तो इसको आप पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट दिस इज इंटर क्रॉपिंग। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट कंटेंट है आउटकम। स्टूडेंट्स डिपेंडिंग अपॉन द cultivar, the crop matures in 75 से 150 days after sowing. Sesame seeds have both nutritional and medicinal value because they are rich in fat, protein, carbohydrates, fiber and essential minerals. So students, this is outcome. ठीक है, so students, this topic is finished. Cultivation of seasonal crop part 2. इसके बाद पार्ट 3 लेके आऊँगा मैं। आई होप आप पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे से इसको सीन करें। ठीक है, और कभी भी आपको डाउट लगे तो मेरे से ज़रूर पूछिएगा। आपके LMS पे पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड है, तो इससे आप सीन करें, वीडियो देखें, एक बार नहीं 2 बार देखें। PPT PDF भी आपके पास अवेलेबल है LMS पे, तो आप इसको देख सकते हैं। और जब भी मेरा वेबिनार होगा आप इसे अच्छे से पढ़ें, क्योंकि वेबिनार में आपसे मैं क्वेश्चन भी फुटअप करता हूँ और आपको समझाता हूँ, उनको डाउट होता है क्लियर हो जाता है। स्टूडेंट्स, ये वीडियो हम लोग 4 पार्ट में कवर करते हैं। देन फर्स्ट वीडियो लेक्चर, सेकंड PPT एंड थर्ड लेक्चर नोट्स एंड फोर्थ वेबिनार कंडक्ट। तो स्टूडेंट 4 पार्ट में आपका एक लेक्चर कंडक्ट होता है, तो प्लीज़ आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि हम इस वीडियो बनाने में काफ़ी कुछ मेहनत करते हैं। ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि हमारी मेहनत ख़राब जाए और आप इसे अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप इसे अच्छे से रीड करें, अच्छे से पढ़ें, कोई डाउट लगे तो मेरे से ज़रूर पूछेगा। ठीक है, तो दिस टॉपिक कल्टीवेशन ऑफ सीजन क्रॉप पार्ट 2 दिस फिनिश। ओके, इसके बाद पार्ट 3 लेके आऊँगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।